朋友们真的是笑死了，印度这一次又造假，结果呢被当场抓包，多家印媒跟进报道，整个印度舆论是直接炸锅。就算是脸皮厚度世界闻名的印度这一回也顶不住了。印度网民纷纷留言说丢脸丢到全世界。事情是这样的，2月16号呢，印度人工智能影响力峰会呢在新德里开幕，为期5天，由印度电子和信息技术部主办，号称印度史上规模最大的科技展会。结果展会期间，一所印度大学展示的自主研发机器狗当场被扒出，根本就是直接买的中国企业现成的产品。据印度时报18号的报道，加尔各答大学团队在峰会上展出了一台名为 Orin 的机器狗，现场工作人员公开宣称这是该校团队完全自主研发，结果很快被网友拆穿，这根本不是印度自研，而是从中国语数科技进口的成品。这一款语数优萃 Go2 机器狗呢，售价大约20万到30万卢比，折合人民币也就 1.5 万到 2.3 万左右，在国内就是一款消费级氏族机器人。眼看瞒不住了，校方赶紧改口，声称自己从未宣称自主制造，并且在社交平台发布声明承认，这一台机器狗确实采购自中国语数科技。校方呢辩称，从语数科技采购的机器狗是我们探索自主研发道路上的里程碑，它不只是展品，更是移动课堂。我们的学生用它做实验，拓展知识，创新无国界，学习也无国界。他们还说这不是引进技术，而是激发变革，重点呢是让学生学习质疑改进技术。结果连社交平台 X 都看不下去了，直接给这条声明打上注释，内容与事实不符，具有误导性，官方下场实力打假。舆论呢越闹越大，印度当局已经要求加尔各答大学退出此次人工智能峰会，理由是造成国家尴尬。其实呢，这个事情一点都不意外，印度长期以来都有一种迷之自信，中国行我也行，一直憋着劲要跟我们暗中较量。中国一出新技术，阿三呢是立刻跟风，甚至抢着宣布我们也行，生怕被中国抢了风头。尤其呢是看到中国语数科技的机器人，去年上春晚还需要辅助，今年一年进步神速，各种场合已经灵活自如。印度呢是又羡慕又嫉妒，于是赶紧从我们这儿买了一台，换个名字就敢对外宣称自主研发。但是呢，真的假不了，假的也真不了。阿三偷奸耍滑成性，这一次在主场办的国际 AI 峰会上彻底露馅，沦为国际笑柄。说真的呢，好歹你换个壳哪怕包个头巾，刷一层咖喱漆，也能多骗几个人不至于这么快就被抓包，真是赤裸裸的丢人现眼。可现实是，这一所大学连这一台机器狗的基本原理都没搞懂，买回来那只会摆拍，真要自研恐怕连拆了都装不回去。对任何国家来说科技发展是要脚踏实地，一步一个脚印的，靠真本事来搞研发创新才是长久之道。中国2025那可是10年前就埋下种子，通过10年的拼搏，一点一滴，一步一个脚印，最终才硕果累累。现在阿三把中国的成品拿来冒充自研，根本撑不起他的所谓的民族自信，只会一次次的成为国际笑话。国与国的竞争拼的是实打实的综合国力，可不是嘴上功夫，更不是掩耳盗铃式的造假。All right, and moving on, Galgotias University, an institution based out of Greater Noida in Uttar Pradesh, has reportedly been asked to vacate its stall at the AI Summit Expo immediately. And this is over an exhibit that raised questions about its origin and ownership. Controversy erupted after the university faced online backlash for showcasing a robotic dog labelled Orion at the AI Summit Expo. Critics claimed that the machine was actually a Chinese-made Unitree Geo 2 instead of an in-house innovation as was presented.
Another video surfaced in which a woman, a professor from the university, claimed that the university has developed Orion while explaining the features of the robotic dog. This sparked a major social media backlash, with many users accusing the institution of passing off imported technology as an indigenously developed product. Following the online backlash, the university came out with a clarification saying that it never claimed to have built the device. Instead, the model was being used as a learning tool for students. The university also said that innovation and learning should not be confined by borders. Listen to this. Which is portrayed there has Unitary and O2 written. Written on it. Yes, the O2 and Unitary is written. It was never an intent to hide that mask that we never claimed we manufactured it. Right. We are not a manufacturing unit. Meanwhile, the university staff has denied this claim that they have been asked to vacate its stall at the AI Summit Expo immediately. Has been given to us. I think we need to give a clarification for all the misinterpretation that is going on right now on social media. Well, Diksha, I am standing inside the stall right now of Galgotia's University. As you can see, the lights are all out. There are parts of the entire stall that have been barricaded for entry and exit. All the staff, professors, administration and even students of the Galgotia University are not present here at the moment. Just to clarify, the few people that you do see sitting behind me are just random participants of the AI Summit who are just sitting over here because the chairs and tables are empty. But the professors, the staff and the students have left. When we asked them if they've been asked to leave, they said that no, they're just going to go and have lunch, but that was almost an hour ago. The representatives and the staff have not returned to this particular stall. Neither have the lights being turned back on. So clearly there is a lot of pressure that is being built silently in terms of authorities asking the university administration to leave and vacate the stall. But the university representatives present over here have denied that this has happened as of now. Whether or not we'll get a confirmation from this on them, it remains to be seen. There were students of Galgotia University who said to us that the university will be issuing a press release later in the evening. So it remains to be seen what exactly the university says in that press release. Diksha? Absolutely. Thank you so much, Dharam. आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि वो गाना था ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो क्या करूं, वैसा ही हो जाता है। क्योंकि दिल्ली में वर्ल्ड एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, जिसकी अनियमितताओं के बारे में हमने आपको बताया कि कियोस्क से सामान चोरी हो गया, लोग अपने कियोस्क तक नहीं पहुंच पाए, लंबी लंबी लाइनें थी, अव्यवस्था थी। दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम है कि मतलब समझिए कि गाड़ियों की अगर लाइन लगाई जाए तो गाड़ियां चांद तक पहुंच जाएं, इस तरीके का ट्रैफिक जाम है। अब एक और ऐसा मामला आया है जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन थोड़ी खिसकेगी और आप भी कहेंगे मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो मैं क्या करूं। दरअसल एआई समिट में तमाम लोग अपने अपने एआई प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, उसे मार्केट कर रहे हैं। उसी एआई समिट में एक रोबो डॉग, यानी मतलब रोबोट वाला कुत्ता टाइप बना दिया रोबोट, और वो चलता है और खड़ा होता है, इधर जाता है उधर जाता है, उसको शोकेस किया गया। अच्छा, उसे शोकेस किया गया, उसे मार्केट किया गया। डीडी न्यूज़ जो सरकारी चैनल है उसमें बाकायदा उसका प्रचार किया गया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ रुपए खर्च करके एक ऐसा रोबो डॉग बनाया है जो बहुत ज़बरदस्त है, यूनिक है, और खूब उसकी मार्केट की गई। अब ऐसा खुलासा हुआ है कि वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये रोबो डॉग बनाने का दावा किया नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, और अंत में ये पूरा फर्जीवाड़ा निकला। ये रोबोट गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या, ये तो इंडिया का ही नहीं है, ये चाइनीज रोबोट है। तो फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। दरअसल ये जो रोबोट दिखाया जा रहा है, आपको रोबो डॉग दिखाया जा रहा है, ये इंडिया तो छोड़ दीजिए, गलगोटिया तो छोड़ दीजिए, ये चीन द्वारा बनाया गया है। तो चीनी रोबोट को गलगोटिया ने ऑनलाइन लगभग $2,800 दे करके लगभग
2.5 से 3 लाख रुपए दे करके खरीदा और फिर उसका नाम बदल दिया और नाम बदल करके उसे बता दिया कि ये हमने बनाया है। और आज चीनी मीडिया हमारा मजाक उड़ा रही है। उनके यहां से एक ट्वीट आया है, चीन के यहां से, मतलब चीनी मीडिया ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि ये जो रोबो डॉग है जिसको इंडिया में एआई समिट में दिखाया जा रहा है, ये रोबो डॉग इंडिया का नहीं है, गलगोटिया का नहीं है, बल्कि चीन का है। और चीन के रोबो डॉग को इंडिया अपना बना करके बता करके चल रहा है। और सोचिए कि इस रोबोट को सिर्फ डीडी न्यूज ने नहीं, देश के सारे बड़े न्यूज चैनल्स ने कवर किया। और ये देखिए, भारत का इनोवेशन देखिए, ये रोबोट बना दिया, ये लोगों से हाथ मिला रहा है। मतलब ऐसा फर्जीवाड़ा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि एआई समिट जो इंडिया में हो रहा है, दुनिया के तमाम शार्प माइंड्स यहां पर हैं, यहां हमारी वाहवाही होनी चाहिए थी इंतजामात की। इंतजाम तो छोड़ दीजिए, यहां तो रोबोट भी चाइना से मंगा करके अपना नाम दिखा करके उसको चलाया और मार्केट किया जा रहा है। और तो और छोड़ दीजिए, ये जो रोबोट है, ये गलगोटिया ने सो किया तो किया, बकायदा भारत सरकार के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक रील बनाई है। उस रील में भी ये रोबोट जो है वो दिखाया गया है, ये बताया गया है कि ये 350 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इंडिया का प्रोडक्ट है। इंडिया किस तरीके से रोबोट्स बना रहा है और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि आज दुनिया हम पर हंस रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तमाम वायरल है और मतलब खबर अगर नक्शल में बताएं तो गलगोटिया एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है, उसने एक रोबोट को एआई समिट में शोकेस किया। इसमें बताया गया कि 350 करोड़ रुपए खर्च करके ये रोबोट तैयार किया गया है। और असलियत ये है कि ये रोबोट चाइनीज कंपनी ने बनाया और उसे लगभग $2,800 में बेचा। ऑनलाइन इसकी ये अवेलेबल है, आप भी खरीद सकते हैं $2,800 दे करके। अब ये इतना बड़ा स्कैम है। सबसे बड़ा सवाल कि ये भ्रष्टाचार हुआ कैसे? 350 करोड़ रुपए कहाँ गए, जिसका बताया जा रहा है ये तो 2.5-3 लाख रुपए का रोबोट है और ला करके दिखा करके मार्केट किया जा रहा है। और जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही के नाम पर तो आप पीछे हट जाते हैं। अब एक खुद बकायदा चाइना पल्स करके वेबसाइट है चीन की, उसने लिखा है एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स चाइनीज रोबोट यूनिट्री जियो 2 एज देयर ओन इनोवेशन एट एआई समिट इन दिल्ली। यानी एक भारतीय यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोट, इसका नाम यूनिट्री GO2 है, इसे अपना बता करके एआई समिट में शोकेस किया। और उन्होंने स्क्रीनशॉट भी डाला है और उन्होंने डीडी न्यूज का एक इंटरव्यू डाला है जिसे अब डीडी न्यूज ने डिलीट कर दिया है। और उसमें इंटरव्यू में बकायदा डीडी न्यूज ने का नाम तो यूनिट्री GO2 है असली नाम, इसका नाम बदल, इसका नाम रख दिया ओरियन। और ओरियन दिखा करके ये बकायदा चला दिया गया, प्रचारित किया गया। और इसे अश्विनी वैष्णव यानी भारत सरकार ने अपनी रील में भी शोकेस किया। मतलब भारत सरकार ने रिसर्च नहीं करी, पता नहीं किया कि कोई भी ऐरा गैरा आएगा और बोल देगा कि मेरा बना हुआ है रोबोट, हमने बनाया है, और भारत सरकार मान लेगी, बकायदा उसको शोकेस किया जाएगा। ये सरकारी अधिकारी तनख्वाह किसकी लेते हैं कि मतलब आप समझिए कि ये असली है नकली है, इसकी पहचान क्यों नहीं की गई? अवेलेबल है। आज हम चाइना से लड़ने की बात करते हैं और चाइनीज आज हम पर हंस रहे हैं, हमारी थू हो रही है। मतलब जिस एआई समिट को भारत का डंका बजाना था कि भाई इस समिट के जरिए भारत को विश्व भर में छा जाना था, वहां क्या देख रहे हैं? लोगों के सामान चोरी हो गए। वहां क्या देख रहे हैं? लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहां क्या देख रहे हैं? फूड स्टॉल्स में प्रॉब्लम है। वहां क्या देख रहे हैं कि नकली रोबोट
यानी नकली रोबोट तो असली है, लेकिन चाइना का रोबोट खरीदा गया